We are going to see what are the forces, application of forces from the engineering point of view, which will help you study engineering mechanics. Forces is a very basic concept, and if you don't understand force, you will not able to understand the subject like strength of materials and theory of materials. So pay attention very carefully and let's move forward. So starting from the basic concept of forces, what does the force mean? Force means that forces are a vector quantity. What does the vector means? It consists of magnitude and also the direction. Some and what does the scalar mean? Scalars are the quantities which contains only magnitude. They can totally be defined by magnitude only. They are known as the scalars, and the vectors are the quantities which need both magnitude and the direction for their definition, and they are known as the vector quantities, and force is a vector quantity. So moving forward, let's know what does the weight means of a body. Weight is also a force for the body acting in perpendicularly downward direction. So let's assume that the weight of this body is 50 newton. What it is 50 newton. So how we know that the weight is 50 newton? We can measure the mass of the body. We can measure the mass. So how does the weight comes? The weight is the multiplication, the product of mass into the gravity due to acceleration. So if we consider that the mass is 50 kg, what it is 50 kg, and the gravity is 1 meter per second square, then it leads to the weight 50 newton. So but we also know that practically the value is taken to be 9.8 meter per second square for acceleration due to gravity. Anywhere on the earth, if the value is not mentioned, take 9.8 meter per second square to find the weight. If you use the mass to find the answers in force concept, you will get it wrong. The answer will be wrong. If there is a body, now consider the body on a rigid plane. It is a horizontal rigid plane. It is acting a force of 50 newton. If I apply a force in this direction, let its magnitude to be 40 newton, will it move in this direction or any other direction? It will not move in any direction because the weight is 50 newton. The weight is 50 newton and applied force is 40 newton. When the applied force will be greater than this 50 newton, then the body will move in this direction. Then only the body will move. Means what we came to know, that the applied forces when greater than the weight of the body, then only the application of forces is done. So मूविंग फॉरवर्ड भी और नॉर्मल रिएक्शन हम सीखेंगे. नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या है? एक बॉडी ऐसी खड़ी है, कुछ हिलडुल नहीं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ी है, कुछ इधर भी नहीं जा रही, इधर भी नहीं जा रही. क्या है? नहीं जा रही है. ईच फोर्स लगा रही है 50 न्यूटन. तो इसे ऐसे ही स्टडी पॉइंट पे रहने के लिए ऊपर भी एक 50 न्यूटन का फोर्स लगता है. ये तो समझ सकते हैं हम मास है. ये 50 न्यूटन क्या है? ये 50 न्यूटन को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर किसी भी प्लेन के इन टच में हो, तो वो प्लेन उस बॉडी के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये प्लेन, ये वेट जो इस डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाता है उस वेट के बराबर. अगर ये नॉर्मल रिएक्शन इस वेट से कम हुआ, अगर इस नॉर्मल रिएक्शन इस वेट से कम हुआ, तो ये बॉडी नीचे जाना शुरू कर देगी. तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. तो आगे जाते हैं, देखते हैं कि ये पुश और पुल क्या होता है. पुश और पुल क्या होता है? ये भी दो टाइप के फोर्सेस है. क्या हम कह सकते हैं ये टाइप ऑफ फोर्सेस है? क्या हम कह सकते हैं ये टाइप से? तो नहीं, हम नहीं कह सकते ये टाइप से. क्यों नहीं? अगर एक बॉडी है, एक प्लेन पे खड़ी है, और अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पुश है.
पर अगर हमने इस ऐसे इस फोर्स को इमेजिन किया तो हम ये भी कह सकते हैं कि इधर एक आदमी खड़ा है और वो इस बॉडी को इस तरफ खींच रहा है, तो ये तो पुल हो गया। मतलब ये तो टाइप्स नहीं है, हम इसे क्या कह सकते हैं, ये दो फ्रेम्स है। कैसी फ्रेम्स है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो है ये एक नज़रिया है। क्या है, नज़रिया है, मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू, कैसा पॉइंट ऑफ व्यू, देखने के लिए कि फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है। सिर्फ फोर्स ही नहीं, वेलोसिटी कैसे एक्ट करती है, एक्सेलरेशन कैसे एक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। हमको हर बार देखना पड़ता है कि मतलब कोई भी बॉडी किसी भी दूसरे बॉडी के एक्सपेक्ट में कैसे रिएक्ट करेगी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता चलता है। तो पुश और पुल, ये दो जो रिएक्शंस है वो भी किससे आती है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से आती है। मतलब ये देखने वाले का नज़रिया है कि ये जो फोर्स है वो पुश फोर्स है या पुल फोर्स है। तो फिर आगे देखते हैं, जो भी हमारे दो फोर्सेस होते हैं, मतलब अगर एक फोर्स है और ये एक दूसरा फोर्स है, तो ये दोनों जो फोर्स है वो कैसे एक्ट करते हैं। अगर ये दोनों फोर्स हमने एक ही ये जो बॉडी है इस पे लगाए, तो इस बॉडी पे क्या मोशन होगा। हमने ये मान लिया कि ये जो बॉडी है इसका वेट नेग्लिजिबल है, तो फिर ये फोर्सेस इस बॉडी को मूव करेंगे, इतना तो हम समझ ही जाते हैं। पर कैसे मूव करेंगे और ये दोनों फोर्स एक साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों फोर्सेस का जो मोशन है, जो रिजल्टेंट है, वो कैसे लगेगा, इसके लिए हमारे पास तीन ग्राफिकल लॉज है। अब हम इन्हें ग्राफिकल क्यों कहते हैं, मतलब अगर हमने इन्हें ग्राफ पेपर पे अगर कोई भी स्केल लेके अगर प्लॉट किया इन फोर्सेस को, तो फिर हमें आंसर करेक्ट मिलता है। और हम प्रोट्रैक्टर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है एंगल मेजरिंग के लिए, उससे भी ये फोर्सेस की वैल्यू और एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए जो ये है इन्हें ग्राफिकल लॉज कहते हैं, मतलब हम इन्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके हमारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे पहले ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ मतलब त्रिकोण, त्रिकोण का नियम क्या होता है ये हम देखेंगे। अगर हमने एक फोर्स ये लिया और एक दूसरा फोर्स ये लिया, पहले तो हम ये समझ ले कि ये जो फोर्स है वो मैं इधर भी ले सकता हूँ, ये जो दूसरा फोर्स है इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ। मतलब क्या, ये जो फोर्सेस है वो हम एक प्लेन पे किधर भी मूव कर दे उसी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब तक सेम है तब तक वो जो रिएक्शन उस पे जो बनेगी उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता, उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ये जो है वो पहला नियम है। मतलब मैं ये फोर्स इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ। तो समझ गए। आगे देखते हैं कि ये अगर फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है और एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर मैं इस दूसरे फोर्स की टिप, जो बॉटम टिप है, उससे पहले फोर्स की टॉप टिप पे ऐसे अटैच कर दूँ उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन के साथ, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो एक मोशन हो गया। मतलब अगर ये बॉडी इधर थी पहले, तो फिर ये पहले फोर्स को ऐड करने के बाद इधर आ जाएगी और इस वाले फोर्स के ऐड करने के बाद इधर आ जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बॉडी गई। बेसिकली क्या हुआ, अगर हमने ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया और ये सी पॉइंट लिया, तो फिर ये बॉडी ए टू बी गई, बी टू सी भी गई। मगर डायरेक्टली क्या कह सकती है, ये तो ए टू सी गई है। तो फिर अगर ये ए टू सी गई तो हम क्या कह सकते हैं, ये ए टू सी जो है इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। मतलब ये फोर्स जैसे एक्ट करेगा और ये फोर्स जैसे एक्ट करेगा, इन दोनों का फोर्स जो रिएक्शन है वो ए टू सी ही दे सकता है। और ये ट्रायंगल लॉ जो है हम वाइस वर्सा भी लगा सकते हैं। मतलब अगर हमने पहला फोर्स ये ले लिया, तो हम दूसरा फोर्स इसे ऐसे लगा सकते हैं और ये कह सकते हैं ये ए टू सी है। सेम डायरेक्शन में लगेगा, सेम फोर्स मैग्नीट्यूड होगा, बट रिएक्शन जो रिजल्टेंट है वो भी सेम ही आएगा इस केस में भी। अभी हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। क्या स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। ये जो है वो फोर्सेस पैरेलल हम लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, इसलिए इसे पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। हमने ये एक फोर्स लिया, F1 कंसिडर करते हैं, ये एक फोर्स लिया, इसे F2 कंसिडर करते हैं।
अब हम जानते हैं कि ये जो फोर्स हम इधर भी ऐसे ले जा सकते हैं, ये तो हम जानते हैं, और ये जो दूसरा फोर्स है हम इसे ऐसे ले जा सकते हैं। तो ये जो इसका रिजल्टेंट होगा, इस पैरेललोग्राम जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये जो साइड है इधर ले जाके और ये जो साइड इधर ले जाके जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से लगेगा। ये जो रिजल्टेंट है इसके डायगोनल से लगेगा। इसके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं कई सारे टेक्स्ट बुक्स में, आप गूगल करेंगे तो भी आपको इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। बट इनके फॉर्मूले जो है वो एंगल के साथ, मतलब अगर हमने ये एंगल थीटा लिया इन दोनों फोर्सेस में का, जैसे भी एंगल चेंज होगा वैसे भी आपको फिर वो साइन का एंगल देखो, उस एंगल 36, अगर साइन 30 है तो साइन 30 के लिए एंगल देखो, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो फिर इस लेक्चर के बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जिससे आपको एंगल वगैरह की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सीधी सादी सिंपल ट्रिक से हर एंगल का पता लगा सकते हैं और अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्यूरेसी भी उस केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो आप पैरेललोग्राम आप सिर्फ 2 फोर्सेस के लिए लगा सकते हैं, पर उस केस में आप 3 फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है, तब भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फिर एक आखिरी लॉ है कि अगर 2 फोर्सेस नहीं है, 3 फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है, 5 फोर्सेस है, 6 फोर्सेस है, तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें बाय ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए भी एक लॉ है, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। मतलब एक पॉलीगॉन कंसिडर किया जाता है। आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, प्लीज़ कंसिडर। एक अगर हमने पहला फोर्स F1 लिया, ये सेकेंड फोर्स F2 लिया, ये थर्ड फोर्स F3 लिया, ये फोर्थ फोर्स F4 लिया, ये फिफ्थ फोर्स F5 लिया, सिक्स फोर्थ F6 लिया, ये सेवन फोर्थ F7 लिया, ये एट्थ फोर्स लिया। अगर ये पहले बॉडी इधर थी तो फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर, ऐसे करते करते ये इधर भी आ जाएगी, फिर इधर आएगी और फिर आएगी। ये मतलब ये इधर से इधर ही आई। ये सब फोर्सेस का जो रिएक्शन है वो इधर ही लेके आए। मतलब अगर जो फोर्सेस है वो अगर एक पॉलीगॉन तैयार करते हैं, पॉलीगॉन मतलब क्या, इनन्यूमरेबल साइड्स का एक जो पॉलीगॉन है वो तैयार करते हैं, तो उसके स्टार्ट की फोर्स की टिप और उसका एंड अगर हम ज्वाइन कर ले और वो पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाए, वो पॉलीगॉन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है यही रिजल्टेंट है इस पॉलीगॉन का, यही रिजल्टेंट है। तो ये हम समझ सकते हैं। तो फिर ये लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसे हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, जिससे हम किसी भी फोर्सेस, 2 फोर्सेस हो, 3 फोर्सेस हो, 4 फोर्सेस हो, उन्हें सीधे एक नोटबुक पे प्लॉट कर सकते हैं और उनसे उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, या फिर कोई अननोन फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम ट्रिक देखेंगे। तो फिर आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।